ناظرین، آپ تمام کو یاد ہوگا کہ اسی ماہ یعنی مارچ میں ہی پچھلے سال 8 مارچ 2024 کو حافظ محمد اکمل کا بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ منظر ہے ان کے اس آخری سفر کا، جنہیں راجیو نگر نمرا گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ایک طرح سے ان کے چاہنے والوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ جاننے والے تو چلے گئے مگر ان کی یاد دلوں میں بسا گئے۔ آج مرحوم کے رشتہ داروں کی جانب سے مدنی مسجد شانتی نگر کے باہری حصے میں یہ خصوصی دعائیہ مجلس منعقد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس موقع پر جہاں مولانا نور الدین فاروقی شریک رہے، وہیں مرحوم کے جوان سال فرزند انظر شاہ، مرحوم کے بھائی ایاز پاشا پنڈو، حافظ اجمل اور دیگر بھائیوں کے ساتھ ساتھ خاندان کے خاصی تعداد میں نوجوان اور علاقے کے لوگ موجود رہتے ہوئے افطاری میں بھی شریک رہے۔ قتل کیا ہے، ہمارے دلوں پر کیا گزر رہی ہے آج نہیں معلوم ہے۔ آج ان کے بچے، آج ان کی بیوی پر کیا گزر رہی ہے وہ تو معلوم ہے۔ نصیب فرما دیجئے، ان کے بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، سب کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم بھلا نہیں پاتے اپنے ساتھی کو۔ اے اللہ ہمیشہ وہ دین اور حق کے لیے جد و جہد کرتے تھے، ہمیشہ غریبوں کا، غربا کی غربت کا وہ خیال رکھتے تھے۔ اے اللہ یتیموں کا، یتیمی کا خیال رکھتے تھے۔ اے اللہ بیواؤں کو، اے اللہ سہارا بنتے تھے۔ اے اللہ اتنے نیک تھے، ہر ہمیشہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے۔ مولا کریم ظالموں کو راس نہ آیا، اے اللہ بے دردی سے ان کا قتل کر دیا گیا۔ اللہ ہم آپ سے ہی التجا کرتے ہیں، آپ کا قانون بڑا سخت ہے، اے اللہ آپ کا گرفت بڑی پکڑ آپ کی بڑی سخت ہے۔ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ رہتی دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اے اللہ ایک عالم کو انہوں نے قتل کیا، اے اللہ ایک مومن کا قتل سارے، ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے۔ انہوں نے ایک مومن، ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین کو انہوں نے قتل کیا۔ اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اے اللہ انہیں دنیا ہو سکتا ہے پیسوں سے چھوٹ کے آ جائے، ہو سکتا ہے یہ مال کی فراوانی کی وجہ سے یہاں سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے کہ قانون کے لچک سے نکل جائیں، لیکن اللہ آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ یا اللہ آپ سامنے والے کی طاقت کو نہیں دیکھتے، سامنے والے کے مال اور رواب کو نہیں دیکھتے۔ یا اللہ آپ مظلوموں کی آہوں کو سنتے ہیں، مظلوموں کو انصاف دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم اس وقت مولانا کا پورا گھرانہ، ہمارے ساتھی، اللہ اس انصاف کی گہار آپ سے لگاتے ہیں۔ اللہ جنہوں نے بھی سازش میں جو حصہ لیا، مولانا کے قتل میں جس نے بھی جس طریقے سے بھی سازش میں، اللہ جس طریقے سے بھی جو شامل ہے، اللہ اسے نیست و نابود فرما دیجئے، انہیں ہلاک و برباد فرما دیجئے۔ اللہ رہتی دنیا میں انہیں ایسا عبرت کا نشان بنا دیجئے، لوگ دیکھیں کہ ایک عالم کے قاتل کا کیا انجام ہوتا ہے، ایک نیک حافظ کے قاتل کا انجام کیا ہوتا ہے، ایک دیندار کے قاتل کا کیا انجام ہوتا ہے، رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں، ایسا ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حق کے لیے جد و جہد کی توفیق نصیب فرما دیجئے، غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پچھلے شعبان کو ہمارے بیچ رہے مولانا اکمل صاحب کا قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ، یا شہید کے نعرے بلند ہوئے، اس سلسلے میں آج تعزیت کے طور پر یہاں پر افطاری وغیرہ کا انتظام ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ اکمل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ تو قرآن کا بیان ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حافظ اکمل ایک شخصیت تھے، صرف وہ ایک شخص نہیں تھے بلکہ ایک سوچ اور شخصیت تھے۔ بظاہر حافظ اکمل صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن حافظ اکمل کی سوچ، حافظ اکمل کی فکر، حافظ اکمل کا جو درد تھا، آج بھی وہ ہمارے ہر کیڈر، ہر ممبر، ہر بھائی کے دل میں موجود ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جیسے ہی 8 مارچ کو یوم شہادت تھا حافظ اکمل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک میں جہاں جہاں ہمارے کارکن بستے ہیں ایس ڈی پی کے، ہر کارکن نے اس دن یوم شہادت منایا ہے حافظ اکمل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔
जगह जगह उनके लिए दुआए मगफिरत, जगह जगह उनके लिए ईसाले सवाब रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 33 वार्ड में भी रखा गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हज़रत मौलाना हाफिज अकमल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे, उनके खानदान, उनके कबीले, उनके भतीजे भांजे, उनके भाइयों की तरफ से आज इफ्तार का इंतजाम भी किया गया है, ईसाले सवाब भी रखा गया था। और आज हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ के लिए ये मजलिस मुनाकिद की गई है। ये बताता है कि हाफिज अकमल साहब, लोग चाहे कि उनको मिटा दिया जाए, लोग बेदर्दी से उनका कत्ल किए क्योंकि हाफिज अकमल की सोच को खत्म कर देंगे, लेकिन उन बुज़दिलों को और उन रोजा है इसलिए एहतियात से बोलना पड़ रहा है, उन बुज़दिलों को जो छुपकर चोरों की तरह मौलाना पर हमला किए और शहीद कर दिए, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, आज अकमल शहीद जिंदा हैं, जिसकी वजह से आज उनके चाहने वाले, उनके भाई, जगह जगह उनके लोग या शहीद अस्सलाम के नारे लगाते हुए हाफिज अकमल साहब के लिए दुआ करते रहते हैं और करते रहेंगे। यही तुम्हारे मुंह पर करारा तमाचा है कि अकमल साहब दिलों में बसे हैं, हमारी दुआओं में बसे हैं और लोगों की सोच में बसे हैं। यही मेरा पैगाम है इंशाअल्लाह। उन्होंने आवामी इखलाक को लेकर भी बहुत दर्द का इजहार किया था। अभी एसपी की जानिब से सारा रियासत में आवाम को लेकर जो मेन सिलसिला में क्या किया। हाफिज अकमल साहब बड़े अजीब, अल्लाह ताला उनको अजीब सलाहियतों से नवाजा था। वो फिक्र करते थे ईद की नमाज हमेशा जल्दी होना, ईद अव्वल वक्त में पढ़ना। कई बार मशवरे हुए जब उनकी जिंदगी में, कभी भी अमल करने का हमें मौका नहीं मिला, लेकिन हाफिज अकमल साहब शहीद पिछले रमजान से पहले शहीद हुए 8 मार्च को। उसी रमजान से जो उनकी सोच थी उस पर अमल करना हम नौजवान उलमा ने शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा हमारे अलहाज पंडू साहब और पूरे साथी उलमा मिलकर, नौजवान उलमा, ईद का पहला पैगाम हाफिज साहब हमेशा उसकी फिक्र करते थे। दूसरा हाफिज साहब की फिक्र थी, हाफिज अकमल साहब शहीद की, कि औकाफ के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हो। औकाफ की जो प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करके अपने ही लोग बैठे हैं, अब गैर हाथ डाल रहे हैं, अपने ही लोग जो इस प्रॉपर्टी को चोरी करके खाने में बैठे हुए थे, उनके खिलाफ हमेशा हाफिज अकमल साहब शहीद। सिर्फ उसी बात पर नहीं, जब भी हमारी रियासत में, मुल्क में, हमारे शहर में बातिल की तरफ से कोई पैगाम आता या कोई इस्लाम पर हमला करता या सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई हमला करता, तो सबसे पहले एक तावाना, एक ताकतवर और एक मजबूत कोई आवाज होती थी तो हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की होती थी। कल मैं बेंगलोर में था प्रोग्राम में, वापसी पर मैंने हमारे हजरत के जो बेटे अंजर शाह का स्टेटस देख लिया, जिसमें मौलाना की बात, अल्लाह की कसम मैं और हमारे 3-4 साथी, हमें बहुत रोना आया। जब भी आवाज सुनते हैं हमें एहसास नहीं होता कि मौलाना दुनिया से चले गए, हमें ऐसा लगता है कि मौलाना हैं, अब हमारी मीटिंग को आने वाले हैं, हमें मशवरा देने वाले हैं, यानी हमें ऐसा हमेशा महसूस होता है कि उनकी आवाज जिंदा है और हमारे कानों में गूंज रही है। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो जो फिक्रें करते थे, और उनकी वार्ड को लेकर भी बड़ी फिक्र थी कि 33 वार्ड में जो एक अजीब माफिया किस्म का चल रहा है, गरीबों पर जुल्म और माफिया किस्म का एक गुंडागर्दी, उसे खत्म करना, एक अच्छा गरीबों का मसीहा बनना, गरीबों का इलाज करवाना, गरीबों के लिए एक अच्छी सियासत करना, ये मैसेज था हाफिज अकमल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन बुज़दिल उनके सामने ठहरने के बजाय बुज़दिलों की तरह, चोरों की तरह पीछे से कत्ल कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मत समझो कि अकमल साहब शहीद हो गए तो अब उनका मिशन लेकर कोई नहीं चलेगा। बच्चा बच्चा हाफिज अकमल शहीद इंशाल्लाह बनेगा। हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरह बच्चा बच्चा जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, जो उनका पैगाम था देर से ही दुरुस्त से ही, इंशाल्लाह उस पैगाम को और उनके मिशन को और उनके काम और काज को इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और भाइयों और तमाम नौजवान साथियों और आए हुए स्टेज पर मौलाना नूरुद्दीन साहब, मौलाना अजमल साहब और हमारे इलियास साहब और टीपू साहब और अंसर शाह, तमाम आए हुए तमाम मेहमान, बस मौलाना अकमल हाफिज साहब, उनका इंतकाल और उन्होंने शहीद होकर बस 1 साल पूरे हो गए। ये ताजगी रखने के लिए तमाम
भाइयों ने, भाइयों के बच्चों ने, बहनों ने, बहनों के बच्चों ने और उनके फर्जंद ने तमाम मिलकर बस उन्होंने जो काम किया है, जो दुनिया में रहते पर जो ऐसे ऐसे काम कर कर गए हैं कि तारीख में नाम लिख कर रखना पड़ेगा, ऐसे काम कर कर गए हैं। बस इसे ताजगी रखने के लिए तमाम खानदान के बच्चे, भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे और उनके औलाद जो अंसर शाह यहाँ पर बैठे हैं, उनका बेटा अकमल साहब का, बस इसको ताजगी रखना। लोगों के अंदर उन्हें इतनी पहचान थे कि गरीबों के अंदर जब भी रमज़ान आता तो बाखदा गरीबों की एक फिक्र रहती। बहुत सारे कम से कम हर साल 1000 आदमी को तकसीम किया करते थे, गरीबों को, बेवायों को, यतीमों को इतना तकसीम करते थे ताकि उनके घर को 1 महीने का राशन जाना और बाखदा उनको पिंचिन, बाखदा महीने में 2-3 हज़ार रुपये उनको घर को मिलना, इतनी बड़ी तकसीम करते थे। नेक इंसान थे, अच्छे काम करते थे। बस दुश्मनों ने उनके काम को देखा नहीं और सहा नहीं जाता था कि उनको बहुत जलन थी दुश्मनों को। लेकिन वार भी ऐसा किया कि पीछे से दुश्मनों ने कभी किसी को इत्तला ही नहीं। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी रहती, अगर थोड़ी सी भी उनको हिम्मत होती, थोड़ी सी भी अगर से उनको ताकत होती तो एक आलिम हाफिज कुरान को पीछे से वार नहीं करते। ताकि नाम मर्दों ने, मैं पहले भी यही कहा हूं कि नाम मर्दों ने, हिजड़ों ने इतने कम ग्रेजुएट में क्या बोलो, इतने कम इंसान दुनिया के अंदर, ऐसे इंसान मिलते हैं कि काली में दीन को पीछे से वार करना, पीछे से मारना, ये कहाँ का इस्लाम क्या इसका इजाजत दे सकता है? अरे कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, कितना भी बड़ा कमजोर आदमी हो, सामने से इस्लाम हमारा इजाजत देता है कि सामने उसको बोलकर वार कर सके, ये इस्लाम हमारा इजाजत देता है। लेकिन कमीनों ने, इंसान वो ऐसे गंदे इंसान है, ऐसे गंदे इंसान है ताकि वो इंसानियत ही नहीं है। मौलाना अकमल ने शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनके घर का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार, उनके खानदान वालों का क्या होगा? ये कभी सोचा है? कभी सामने वाला ये सोचा है? अरे उनके चंद बोलने से, अरे वो सच बोलते थे, वो अच्छा बोलते थे, जो भी कहते थे कुरान हदीस की बात करते थे, अच्छी बात करते थे। लेकिन ऐसे एक नेक इंसान को मारना, ये कहाँ का इस्लाम इसका ये बातों का इजाजत देता है? मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं तमाम माँ बाप से यही कहता हूँ कि ये मेरे नौजवानों को, तमाम मेरे वालों को ये सब ताजगी रखना होगा कि ऐसे इंसानों से, कि एक अच्छे काम करने वाले इंसान को ऐसा इंतकाल किया जाता है, क्या इसका इस्लाम इजाजत दे सकता है? लेकिन उनके परिवार का क्या होगा? ये कौन उनकी फिक्र रख रहा है? उसकी बीवी का, उसके बच्चों का, उसके परिवार का हालात उनके कैसे, किस नतीजे पर चल रही है? मैं तमाम मेरे माँ बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अकमल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को, हमारे माँ बाप को, उनको भी करवट जन्नत नसीब फरमाए। जितने भी मरूम इस रमजान के अंदर दुनिया छोड़कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब फरमाए। मुझे 2-4 बात करने का मौका दिया, मैं तमाम इन बातों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, सामईन इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, जैसा कि हमारे दरमियान में हाफिज़ फारूक़ुद्दीन साहब ने, नूरुद्दीन फारूकी साहब ने पूरे तफसीलात के साथ हमारे सामने बात रखी कि हमारे भाई हाफिज़ शहीद मोहम्मद अकमल साहब इस वार के लिए, इस वार के ही लिए नहीं बल्कि सारे मुसलमानों के लिए हमेशा जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाता, जब भी कोई मुसलमानों पर बात आती, तो सबसे पहले उठने वाले शख्स पूरे मैसूर शहर में सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ शहीद मोहम्मद अकमल साहब थे, जो सबसे पहले आवाज़ उठाते थे।
यहाँ तक कि संगे वगैरह के बारे में कई सारी उस्मानिया मस्जिद में मशवरे हुए, उसमें मौलाना बिल्कुल सामने सब में नज़र आए। इसके अलावा और जो भी, जैसे कि हमारे मौलाना ने कहा कि जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता तो सबसे पहले हाफिज़ अकमल शहीद साहब मैसूर में आवाज़ बुलंद करके खड़े हो जाते थे। तो हाफिज मोहम्मद शहीद अकमल साहब की इस आवाज़ को चंद शर पसंदों को पसंद नहीं आया और इन्होंने बेदर्दी से गुज़िश्ता साल 8 मार्च को बेदर्दी से इन्होंने हाफिज अकमल शहीद साहब का कत्ल किया। और सारा मैसूर जानता है कि ये बुज़दिलाना कत्ल है। ये बुज़दिलाना कत्ल जो किए हैं, बुज़दिल जो बार बार इनके अल्फाज बोलने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि इतने ये बुज़दिल आदमी हैं कि इन्होंने, जैसे कि हमारा कारपोरेटर साहब ने कहा कि इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनकी बीवी है, किसी का इन्होंने नहीं सोचा, बल्कि बेदर्दाना जो कत्ल किए हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, हालांकि मेरा और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा का जब कत्ल किया गया, जालिमों ने बेदर्दी से कत्ल किया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब भी वो कातिल सामने आते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ महसूस होती थी, दर्द महसूस होता था। तो ऐसे ही इन कमीनों ने इन कमीनों ने जो कत्ल किया है, हमारे दिलों पर क्या गुजर रही है आज नहीं मालूम है। आज उनके बच्चे, आज उनकी बीवी पर क्या गुजर रही है मुझको मालूम है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके घर में अज़ाब नाज़िल करे, अल्लाह पाक इनको भी बताए और इनकी जिंदगी में रहते हुए किसी मुसलमान का ऐसा नाहक कत्ल ना करे। अल्लाह पाक इनको जरूर सजा दे, अल्लाह पाक इनके घर में यह अज़ाब उतारे, इनके भी घर में कत्ल हो, इनको मालूम चले कि बीवी बेवा होती है तो क्या गुजरती है, बच्चे यतीम होते हैं तो क्या गुजरती है। छोटी बात को लेकर इन्होंने हाफिज का ख्याल भी नहीं किया, उनके चेहरे पर सुन्नत थी उसका भी ख्याल नहीं किया। ये मुसलमान है, हमें शर्म आती है इनको मुसलमान बनने के लिए कि चेहरे पर सुन्नत था, आंख पर एहराम बांधे हुए झुपा और तहबंद शरई पहने हुए थे, सर पर टोपी थी, इसका भी ख्याल नहीं हुआ इन जालिमों को। यहाँ तक मैं समझता हूँ अगर कोई गैर कौम होता तो उसके दिल में रहम आ जाता कि ये मुसलमान है, इसके चेहरे पर दाढ़ी है, इसके सर पर टोपी है, लेकिन इन कमीनों ने, इन जालिमों ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि ये हाफिज कुरान है, इसके चेहरे पर सुन्नत है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, कोई ख्याल नहीं किया। इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ, मैं जज्बाती हो चुका हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल बहुत टूटा हुआ है, हमारा दिल बहुत टुकड़े टुकड़े हुआ है, इसलिए मेरी जबान से अल्फाज निकल रहे हैं कि जो भी इस कत्ल में मुलविस हैं, जो भी इसमें प्लान के जरिए से हो या गाड़ी चलाने के जरिए से हो या मारने के जरिए से हो, कुछ भी हो, जो भी इसमें मुलविस हैं, अल्लाह पाक इनके घरों में जरूर, रमजान का महीना है, इफ्तार का वक्त करीब है, इनके घरों में ये जरूर अज़ाब उतारे और इनको ये दर्द महसूस हो और सारी जिंदगी इनको मालूम, इनको पता चले कि एक कत्ल करने से कैसे हमारी जिंदगी के इसमें वबाल आता है, इनको पता चले। और मैं यही आप लोगों से आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे भाई हाफिज मोहम्मद शहीद अकमल साहब को आप अपने रमजानुल मुबारक की खुसूसी दुआ में याद रखें कि अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। इनकी जो खिदमत थे, जो इन्होंने खिदमतें की थी, अल्लाह पाक उसको कबूल करे। हमारे भतीजों ने, हमारे भांजियों ने इसमें बहुत सारी कोशिश कर अकमल साहब की याद ताज़ा रखने के लिए आज ये इफ्तारी का इंतजाम किया गया है, वरना कोई ऐसा हमारा सालाना प्रोग्राम ऐसा नहीं है। बस अकमल साहब की खिदमतें और अकमल साहब के लिए इफ्तारी का इंतजाम यहाँ पर नौजवानों ने मिलकर ये इंतजाम किया गया है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।